گر جاتی ہے۔ اس حسین دربار کو دیکھتے ہی دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اور پھر تم بے اختیار یہ کہہ دو گے، حسین کا دربار دیکھتے ہی تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں گے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا بھی ماحول ٹھیک ہے۔ تو آپ سبھی کے لیے میں ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جو آپ لوگ سوچ کر اور سن کر وہ دنگ رہ جائیں گے کہ ایسا آخر ہو سکتا ہے کیا ایسا سچ میں ہو رہا ہے، کیا ایسا سچ میں اور ہوگا بھی۔ تو یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو کہ یہ نیا ہی بیان ہے جو آپ سبھی کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو۔ تو وہ بیان آپ سبھی کے سامنے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے یا نہ کریے، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی ہر چیز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر شیئر کریں گے تبھی اگلا آدمی اس کو دیکھ پائے گا اور اسے سن پائے گا، کیونکہ ایک ایسا یہ بیان میں لایا ہوں جو انسان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ دنیا میں بھی آپ سبھی کو یہ کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ضرور ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بیان ایسا ہے جو ہم سبھی کے دلوں کو تازہ کرتی ہے، ہم سبھی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایسا بیان اور علماء بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جو مین ٹاپک ہوتا ہے، جو انسان کو مین ٹاپک جو اصل بات بتانی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور کر دیتے ہیں ہر ویڈیو میں۔ تو وہی ویڈیو میں لایا ہوں آپ سبھی کے سامنے، تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جائیے۔ اگر آپ سبھی لوگ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگ اپنا کمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ویڈیو، آپ لوگ اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ پڑھتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے، یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اتر آئے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے۔ سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہی بیٹھا ہوں۔ یہ مقام تھا امام حسین کا، بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں، حضرت عمر خطبہ دینے لگے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے امام حسین کی داستان کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے۔ وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں، جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا، جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح، اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں، ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بتاؤں، بچے دونوں بیمار تھے، امام حسن اور امام بزرگ سے چٹھیاں وہاں پر بہت اندر رہتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی ڈالتے ہیں، نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، بہت ساری چٹھیاں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا چٹھیاں کیا ہیں؟ کہا برسوں سے رواج ہے، جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پورا چٹھی میں اپنا لکھ کر کے لاتا ہے اور امام حسین کے پاس پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے ہم رعایا ہیں اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے اگر شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کے سامنے کی جائے؟ لوگ اپنی شکایتیں آج بھی پیش کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، 14 صدیوں کے بعد بھی جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، وہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ وہ استقامت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
वस्तकामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है और फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं जो इस्तिकामत के साथ खड़ा है उसको कि घबराओ मत, डरो मत, अन करीब अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुमसे वादा किया है वो तुम्हें मिलने वाला है। ये इस्तिकामत के साथ रहने वाले के लिए मलाइका उतारे जाते हैं। आज भी हमारा इम्तिहान इसी इस्तिकामत को लेकर के है, कितने जमे रहोगे, कितने डटे रहोगे, यही इम्तिहान आने वाला है। आगे भी देखना, इस जमाने में भी देखना, तुम्हारी टोपियां उतारी जा रही, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही, तुम्हारे बुर्के, तुम्हारे हिजाब सब सवालिया निशान है। अब तो हालात ये हो गए हैं, लोगों को इतनी खुजली है कि अजान की आवाज से भी पूरे जिस्म में कुछ लोगों को खुजलियां होती हैं। तकलीफें इतनी हैं कि सब उतार दो, कोई अजान की आवाज नहीं। सदियों से जो अजान की आवाजें गूंज रही थी, आज पता नहीं पागलों के दिमाग में कौन सी चीज सवार है, कौन सा शैतान सवार है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि अभी अभी के बने हुए शैतान हैं, शैतान तो पुराने हैं, लेकिन इम्तिहान की घड़ी तुम्हारी, वक्त अभी हमारे इम्तिहान का आ चुका है। ये जो पूरी दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, इन हालात में भी मेरे अजीजों एक बात याद रखना, बहुत सारे तूफान, बहुत सारी आंधियां आएंगी। अगर तुम ईमान की हिफाजत के साथ इस दुनिया से गए तो अमन में हो, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जमाने के लिए फरमाया था, वो जमाना आएगा मेरी उम्मत पर कि सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे, शाम में मोमिन सोएंगे, सुबह काफिर उठेंगे। वो उस जमाने में हम आ चुके हैं जहाँ ईमान का सौदा होने लग गया है। लोग तो आज, मुझे पता है मैं हर चीज पर बात करूं तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। हमारी कौम में सबसे ज्यादा वो गद्दार लोग मौजूद हैं जो चंद टकों के लिए, जो चंद पैसों के लिए मुखबिरी किया करते हैं और ईमान बेचते हैं। इनको क्या हासिल होता है? अपनी कौम की खबरें जा करके लोगों को पहुंचाना, पुलिस को खबर देना, उसको खबर देना, नेताओं की चाटुगिरी करना, ये सब चीजें तुम्हारे यहाँ कहाँ से आ गई? तुम तो खैर उम्मत हो, हुसैन आजम के गुलामों में तुम्हारा नाम होता है। तुम्हारा सीना तो ऐसा होना चाहिए कि कभी तुम्हें कोई गुलामी पे झुका ना सके। लेकिन जो लोग गुलामी को पसंद करके तलवे छाटना चाहते हो, याद रखना इस दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी बड़ी जिल्लत है। बहुत बड़ी जिल्लत का तौक उठा करके उठाए जाएंगे। इसीलिए बाज आओ, ऐ नौजवानों, मैं आपसे कहता हूँ, लालच पर, पैसों पर, थोड़ी सहूलत देने पर अगर तुम बिक जाते हो तो तुमसे ज्यादा इस रूए जमीन पर कोई बदनसीब नहीं होगा, कोई बदनसीब नहीं होगा। आपको पता है मुनाफिकीन के रद में अल्लाह ने कितनी आयतें उतारी, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे हिस्से में होंगे, सबसे ज्यादा अजाब में होंगे। कौन है वो मुनाफिक? जो चेहरे से मुसलमान दिखते हो, अंदर से काफिर होते हैं। ये दगाबाज, धोखेबाज। आज पता है आपको, ईरान की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा उसे नुकसान किस चीज से हुआ था? मैं उस जंग पर बात नहीं कर रहा, लेकिन इस मुकाबले को आप अपने सामने जो पेश आ रही है उन हालात को देख करके समझो। सबसे ज्यादा यहूदियों की तरफ से नहीं, उनकी कौम में मौजूद उनके गद्दारों से था, जिन्होंने जगह जगह बम उड़ाए, जगह जगह इजराइल का काम किया वहां पर। ये सारे हर जमाने में होते। उनको क्या फायदा था? उनको क्या चीज मिलने वाली थी? बस थोड़े से पैसे या थोड़ी सी सहूलतें या थोड़ा सा दुनिया का ऐश मिलता। ये हर जमाने में होता है। ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ऑफर आए तो ठुकरा देना, इसलिए कि रसूलुल्लाह से गद्दारी कभी नहीं करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में भी तुम्हें मुंह दिखाना है और हशर में भी मुंह दिखाना है। आज तुम्हारी दुश्मनी भी अगर किसी मुसलमान से हो जाए तो उसकी खबरगिरी करना या उसकी जासूसी करके दूसरे तक पहुंचाना, ये सख्त कबीह काम है, बहुत ही बुरा फेल है। इस अल्लाह ताला की इस पर लानत है जो इस तरह के कामों में मसरूफ है। गद्दारों से बहुत बड़ा नुकसान है। आज इस्तिकामत की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे हालात भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारे अपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लोग छोड़ करके गद्दारी करें। आपको मैं बताऊं, मैं कैद की हालत में था, 22 दिन तक मुझे इधर से उधर घुमाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कोई
आतंकवादी पकड़ करके लाए, पूरा जुलूस लेकर के घूम रहे। अरे 2 जुमले क्या बोले जिसकी बुनियाद पर इतने सारी तुमने घुमा दिए सारी चीजें। मैं कभी बोलता नहीं इस चीज पर, आज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे सामने बैठा हुआ ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, उसे तो 5 चीजें मालूम थी, वो ये चीजें पूछ रहा है, लेकिन सामने मुझे खुद उसने बताया। थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, फिर मैसेज आता है, और वो हंस रहा है और कह रहा है मुफ्ती साहब ये देखो आपके फला हजरत ने मैसेज दिया, आपकी इस तकरीर की क्लिप को भेजी है, ये भी पूछो उनसे, ये भी पूछो उनसे। मुझे सब पता है, मैं कभी इस चीज को इजहार में नहीं लाऊंगा, लेकिन इसका इंसाफ अल्लाह की बारगाह में होगा, अल्लाह की बारगाह में फैसला होगा। और जब रसूलुल्लाह के दरबार में हम खड़े होंगे तो देखना हम किसके साथ होंगे और तुम किसके साथ खड़े रहोगे। देखना इस बात को। एक बंदा रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुफार और मुशरिकीन के नरगे में बैठा हो और तुम अपनी रोटियां सेकने के लिए उसके सामने हमारी जासूसी करते हो और उससे कहते हो किसी हालत में छोड़ना मत, किसी हालत में छोड़ना मत। और वो लोग जानते हैं और वो कहते हैं आप घबराओ मत, हम तो अपना प्रोसेस करेंगे। और ऐसे लोग हमारे पास बहुत सारे हैं जो भेजते रहते हैं, हम तो अपना काम ही करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, वो काम अपना कर रहे होंगे लेकिन दिल पर छुरियां चलती हैं। ये कौन से लोग हैं? किस नबी का कलमा पढ़े हुए लोग हैं? तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की नामूस भी कोई माने नहीं रखती, हुजूर पाक की इज्जत भी कोई माने नहीं रखती। इस चीज से आज पूरी कौम परेशान है। बड़ी बड़ी जंगें इसीलिए हारी जाती हैं जब कौम के अंदर मुनाफिकीन मौजूद होते हैं। आज इस चीज के अपने दिल को भी पाक रखो। हमने तारीख देखी है, टीपू सुल्तान यूं ही नहीं मरे थे। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के हाथ में देने वाला भी गद्दार मौजूद था, मुसलमान था। ये सारी गद्दारियां आज जो आई, कितने तो ऐसे हैं पहले ही से जाकर के कहते मस्जिद में ये हो रहा है, मस्जिद में ये हो रहा है। याद रखना क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे काले होंगे, अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाओगे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह फरमाता इससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोकता है? इससे बड़ा जालिम कौन है? और वो सब जालिम आज देखने को आ रहे हैं। बहरहाल खुलासा कलाम ये है मेरे अजीजों, हम हुसैनी ईमान रखते हैं और हुसैन की तरह अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि मौला सारी कुर्बानियां हो जाएं मगर ईमान का सौदा करने की नौबत कभी ना आए। रब तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए कि हमारे जिस्म के छितड़े हो जाएं मगर मौला तेरे हबीब पाक की इज्जत और उनकी मोहब्बत बाल बराबर भी हमारे दिल में फर्क आने ना पाए, बाल बराबर भी फर्क होने ना पाए। अपनी औलाद को भी यही तालीम देकर जाओ, यही तालीम देकर जाओ। करबला सुनने का मतलब ये नहीं है माथा पीट लिया, सीना पीट लिया, रो धो करके उठ गए। रोना तो सबको आसानी से आ जाएगा, लेकिन हुसैन के उस मैसेज को अपने बच्चों में ऐसा पिला करके जाओ कि तुम्हारे दौर में भी यजीद आएंगे, तुम्हारे दौर में भी यजीदी फितने होंगे। उस वक्त मेरे बेटे चूड़ियां पहनकर घर में ना बैठना, यजीदियों का मुकाबला करने के लिए हक बात का ऐलान करना। मुझे याद है मेरी बात, मैं जिस वक्त अपने घर से दिल्ली के लिए निकल रहा था तो मेरी माँ ने यही कहा था ना वापस आओ तो कोई बात नहीं, हमें यकीन है कि अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इस्तिकामत को हर घर में अता फरमाए। हुसैन आज़म का जज्बा अल्लाह ताला हमारी औलाद में अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ, क्योंकि ये बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का, जो आप सभी को मैं शुरू में ही बता दिया हूँ हर चीज़। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये बयान जो किए हैं सहाबा कराम के बारे में, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में और बाकी सब जितने भी हर चीज़ के बारे में बयान किए हैं, वो सब हम सभी के लिए बहुत बेहतर होता है। यानी कि ये उलमाए कराम का काम होता है कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग जो सीधे रास्ता से गलत रास्ता पर जा रहे हैं, सुन्नत रसूल को तर्क कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इश्क मुस्तफ़ा नहीं अपना रहे हैं, तो वो सब के लिए उलमाए कराम का जो काम होता है वो तकरीर करना होता है और वो उसी में बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। यानी वो ये बयान देते हैं कि अगर तुम लोग अभी से भी सुधर सकते हो, तौबा कर सकते हो, तो अल्लाह ताला उससे जरूर राजी होगा और उससे जरूर कल क़यामत के दिन बेड़ा पार होगा। तो मैं इसलिए बयान लाता हूँ आप सभी के सामने
क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी को मालूम नहीं है, मदरसा नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बहुत ऐसे दुनिया में आजकल के लोग हैं जो मदरसा तो नहीं गए लेकिन इसी सोशल मीडिया की वजह से दीनी तालीम सीख लेते हैं और दीनी तालीम सीख कर भी हर चीज़ कर रहे हैं आजकल के हालात के ऊपर। क्योंकि जो बड़े हो चुके हैं 30 साल 35 साल 40 साल के नौजवान बूढ़े लोग, तो वो लोगों को अब तो मदरसा वो जा नहीं सकते हैं और जाते भी नहीं है, जो बहुत शर्म लगता है उन लोगों को। तो ये सोशल मीडिया एक ऐसा है जो इस पर लोग देखते हैं और सुनते भी हैं और इसी से सीखते हैं हर चीज़। तो इसी से हर चीज़ अपना वो काम कर लेते हैं। तो मैं यही वीडियो लाया हूँ कि आप सभी लोग इससे कुछ सीखें, कुछ समझे। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।